دوستو یہ کہانی ایک غریب لکڑہارے کی ہے۔ ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹی اور انہیں بیچا۔ اپنی اس محنت سے اس نے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا جس میں وہ اور اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا نام شرپو تھا۔ تینوں آرام سے اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو، یعنی کمائی ہو۔ بیوی روٹی پکاتی اور بیٹا گھر میں ہی رہ کر چھوٹا موٹا کام کیا کرتا تھا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے جیسی ہمت نہیں رہی۔ آئے دن اکثر وہ بیمار ہی رہتا، مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی سوچنا تھا، اس لیے اسے بھی کسی قسم کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ ایک دن لکڑہارا صبح کو جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر اب لکڑی کاٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے وہ لکڑی کاٹنے نہیں گیا۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہوا تو اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح سویرے گھر سے باہر نہیں نکلا اور نہ ہی لکڑیاں کاٹنے گیا، اور یہاں چارپائی پر کیوں لیٹے ہیں۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے بیٹے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرپو بیٹا۔ بیٹے نے کہا، جی ہاں ابا۔ لکڑہارا بولا، دیکھو بیٹا، اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنی ہی ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار بھی ہوں۔ بیٹا بولا، تو فرمائیے ابا۔ تو لکڑہارا بولا، بیٹا جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے وہ اب تم کرو۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے ہو اور طاقتور ہو۔ شروع میں یہ کام تھوڑا مشکل لگے گا، پھر دھیرے دھیرے آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ یہ کہہ کر باپ نے کہا، سمجھ گئے بیٹا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا، اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ لکڑہارا بولا، شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ ماں بھی پاس میں کھڑی تھی اور باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا کلہاڑا لے آؤ۔ بیوی اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ لکڑہارا بولا، بیٹا یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اسی کے ذریعے لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا کر بیٹے کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں ہے، روزانہ کتنی لکڑیاں کاٹنی ہیں اور انہیں کس طرح گٹھرا بنا کر سر پہ اٹھا کے لے جانا ہے، اور لکڑیاں کیسے بیچنی ہے۔ یہ سب باتیں لکڑہارا نے بیٹے کو بتائی۔ لکڑہارا نے اسے جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ بیٹا بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش تھے۔ جب لکڑہارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا، لو بیٹا، آج سے تم اپنا کام شروع کر دو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور بیٹا کاندھے سے کلہاڑا لگا کر گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 20 پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ اس کے بعد لکڑہارے کے بیٹے نے ایک لمبی جھکی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس کی نظر پیڑ کے اس جگہ پڑی جہاں سے شاخ نکلی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے اور 2-3 بچے اس گھونسلے میں ہیں۔ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ اگر میں نے یہ شاخ کاٹ ڈالی تو کیا گھونسلہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں ہیں وہ نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے اس شاخ کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آنے لگی کہ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، ان کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوں گے، میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کما لوں گا، لیکن یہ ان پرندوں پر بہت ظلم ہوگا۔
जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि क्या करूं। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था। बेटे को आता देख बाप बोला, बेटा शरफू, जल्दी आ गए हो, लकड़ियाँ बिक गई क्या? बेटा बोला, नहीं अब्बा जान। लकड़हारे ने पूछा, क्या बात है? तो बेटा बोला, अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला सका। लकड़हारा हैरान होकर बोला, पर क्यों? तो बेटे ने जो कुछ देखा वो बाप को बता दिया। इससे पहले कि बाप कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाख काट लेते। तो बेटे ने जवाब दिया, अम्मा वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता? लकड़हारा अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा कि आओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियाँ काट कर बेचनी होती है। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है, मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल हो गए। लकड़हारा गुस्से में न जाने क्या क्या कह देता कि उसकी बीवी ने चुपके से समझाया कि आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन रुक जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। इसके बाद 2-3 दिन बीत गए। फिर बाप ने बेटे को एक और जगह का पता बताया और कहा कि खबरदार, पेड़ पर ज़र्ब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शरफू ने हद कर लिया कि वह पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा याद था। चुनांचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर न देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ी मारने लगा तो उसकी नज़र पेड़ के नीचे जंगली फल पर पड़ी, जिसे कुछ लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। ये देखकर उसके जहन में ख्याल आया कि इस पेड़ पर यह फल आता है तो मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वह देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा और बिना लकड़ी काटे ही घर लौट गया। जब तक लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला कि आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है। क्यों बेटा शरफू? तो बेटे ने कहा कि नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ न काटने की वजह बताई। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई और बोला, तो कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियाँ काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। बेटा बोला, मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं हैं लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। बाप बोला, तो तुम्हें क्या है, लोग पकाकर खाते हैं तो तू नहीं। बेटा बोला, अब्बा जान वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब आप कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा अगर इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस बार पुराने पेड़ों का पता बताकर कहा, खबरदार अब कोई बहाना मत बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा कि इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इन्हें काटना इन पर जुल्म होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसके पुल से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना यह कुल्हाड़ा होगा और ना मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखा। सोचा ये अच्छा काम है, मैं अभी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूँगा। उस दिन वो शाम के वक्त अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेच कर आया होगा। लकड़हारा बेटा से बोला, तो आज तुमने काम कर लिया है? बाप का ये सवाल सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही अल्फाज निकले तो लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झटक दिया कि बस बस अब तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना न था। कहाँ जा सकता था?
चलता गया यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम उठना मुश्किल हो गया। पास में ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बेटे की बातें याद कर रो रहे थे कि उनके मकान के आगे एक बग्घी रुकी। उनमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर उस आदमी से पूछा कि क्यों जनाब, क्या बात है? तो वो शख्स बोला कि आपको और आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। वो शख्स बोला, आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? लकड़हारा बोला, जी नहीं। तो वो शख्स कहने लगा कि वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके बग्घी में बैठ जाइए। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्घी में बैठ गए। बग्घी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देखकर हैरान हो रहे थे। एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मी जान। अरे शरफू! लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लग रहा था। शरफू की माँ ने पूछा कि तुम यहाँ कहाँ? तो शरफू कहने लगा, अम्मी जान, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक नादिर खान हैं, जिन्होंने ये देख कर कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बाग का माली बना दिया है। वो है नादिर खान। इसके बाद नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे कि वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था कि उसे पेड़ों और परिंदों का बड़ा ही ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि हमें दूसरी मखलूक़ात जैसे परिंदे वगैरह, चींटियाँ वगैरह, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इसका अज्र ज़रूर देगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। हम मिलते हैं नए वाक़ये और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।